Problem number 1, circular motion. Question number 1, find the acceleration of the moon with respect to the earth from the following data. Distance between the earth and the moon is, so distance between the earth and the moon is what? Radius here. So radius is given as 385 into 10 raised to 5 kilometer. So you can write what? 385 into 10 raised to 8 meter. Okay. Then the time taken by the moon to complete one revolution around the earth is 270. So this is the time period that has been given, that is 273 days. Now in one day there are 24 hours. So 24 into 3600 seconds. So this will become what? Calculation करावं लागेल आपल्याला. किती येते रे calculation बघा बरं. येते रे बाबा. Calculation. ठीक है. We'll keep it as it is. So this is time period in second. ठीक है. Now we have to calculate what? Find the acceleration. Now the necessary acceleration will be the centripetal acceleration. So centripetal acceleration will be given by what? R omega square. Okay. So R is what? 385 into 10 raised to 8 into omega is what? 2 pi by t. 2 pi by t का होल स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा. 385 into 10 raised to 8 into 4 pi square, okay, divided by 273 का होल स्क्वायर into 24 का होल स्क्वायर into 3600 का होल स्क्वायर. बहुत बड़ा कैलकुलेशन है. आप ये घर पे करोगे, आ जाएगा ना आपको? हाँ सर. हाँ सर. Only calculation is remaining. The answer will be in meter per second square. Okay, so you do this calculation. You can do this. What the time consuming gradient. Now, problem number 2. Find the acceleration of the particle placed on the. ये आपको दिख रहा है या बड़ा करूँ इसका साइज? हाँ सर दिख रहा है. Find the acceleration of the particle placed on the surface of the earth at the equator due to the earth's rotation. The diameter of the earth is given as, so diameter is given as 12800 kilometer. So that is what? R is equals to d by 2. So that is 6400 into 10 raised to 3 meter. Okay. So this is the radius of the earth and it takes 24 hours. So it is what time period? So 24 hours means what? 24 into 3600. This calculation we can do. Okay. Now again they have asked same question, acceleration. Now the necessary acceleration with what? Centripetal acceleration or radial acceleration, R omega square. Same formula. So it will be what? 6400 into 10 raised to 3 into omega is 2 pi by capital T का whole square. So that is 6400 into 10 raised to 3 into 4 pi square divided by 24 pi 76, right, square. So into 36 into 36 into 10 raised to 4. So I will write here 10 raised to minus 4. तुम्हारा कळलं मी काय केलं? So this will become what? This will become 64 into 4 pi square. Okay. Then it will be what? 10 raised to 5 into 10 raised to minus 4 divided by 576 into 36 into 36. Okay, so this will become what? कुठे गेलं बाबा, हे कट झालं, 10 राहिलं, 10 राहिलं, 5 राहिलं, 18, 18, then again 2,
with 8. Yes. This is 4, 144, 272, 136, 118. काय राहिलं रे वरती? काय राहिलं? पाय स्क्वेअर राहिले का? येस, पाय स्क्वेअर राहिले. हाँ Divided by what? 18 into 9 into 9. 18 into 9 into 9. So that is what? Pi square divided by 18 into 81. So this is coming out to be, आता हे लॉग नाही करावं लागेल रे, कळलं का तुम्हाला? हे बघा, नंबर लॉग टेबल बनवायचं मस्तपैकी. So it will be what? Otherwise you can do that. Pi square you will take it as a 10. Okay, so 10 divided by what? 18 into 81. So this will be what? 10 divided by 18. 18 8 जा 18 8 64 144. सर कितना आ रहा है इसका आंसर? 1458. क्या ये टोटल 18 into 8. 18 into 18 into 81 बोल रहे हैं 81. क्या? 14 हाँ 14 कितना? 1458. ओके, सो यहाँ पे 1458 है. ठीक है, सो 10 डिवाइडेड बाय दिस कितना आता है देखो. 10 डिवाइडेड बाय दिस कितना आ रहा है? 10 डिवाइडेड बाय दिस 0.00 हाँ 6858. एक मिनट. एचसीवी लेके बैठे हो क्या? आप आंसर चेक करना है, हमारे जो आंसर आ रहे हैं मैच हो रहे हैं कि नहीं. नंबर कितने? चैप्टर नंबर आपके पास एचसीवी नहीं है क्या? है ना सर. देखो ना यार, उसमें है सर. आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, अपन ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं. 0.0366. आणि आपले नहीं किती आले? 336. आपले किती आले? 0.006 0.006 आला. 0.006 आले. हाँ मग चुकलंय का आपल्या? 0.336 यायला पाहिजे. 10 divided by 1458. एक मिनिट, हे परत करूया आपण. 81 into 18 हाँ 145 आएगा ये. सबको बराबर 18 ही बचा था इधर. इधर क्या बचा था? ये 5 बचा था ना रे ऊपर, क्या? नहीं नहीं, ये 5 बचा था ना. ये 5 ये कंसिडर ही नहीं किया हमने. हाँ हाँ सर. इंटू 5 करो इधर, इंटू 5 करो इधर. अभी करो 50 डिवाइडेड बाय 1458. अभी करो, अभी बराबर आ जाएगा. 0.03 ऐसे कुछ तो आ जाएगा. हाँ सर आले. 0.0336 सही है. हाँ आले तो आले. ये कैलकुलेशन में देखो ना, इधर हाँ, हमने सर. क्या किया, ये 10 का 5 हो गया ना. मेरे को लगा ये 5 मैंने कैसे, तो ये मैंने कंसिडर ही नहीं किया था. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट यू डन द मिस्टेक इन द कैलकुलेशन. चलो प्रॉब्लम नंबर 3. A particle moves in a circle of radius 1 centimeter at the speed given by u is equals to 2t.
where V is in centimeters and T is in seconds. Find the acceleration of the particle at T is equals to 1 second. Now radial acceleration. So radial acceleration क्या होता है? फॉर्मूला बोलो फटाक से, बोलो v स्क्वायर बाय r, क्योंकि v दिया है हमें. So v स्क्वायर बाय r, v कितना दिया है? 2t. So it will be what? 4t square divided by what? R is 1 centimeter. So 1. So now we have to calculate this at a time interval of what? 1 second. So if you put the t as a 1 second, it will be what? 4 centimeter per second square. This is your first answer. Okay, ये आपका पहला आंसर आ गया. Now find the tangential acceleration at t is equals to 1 second. Now tangential acceleration कैसे निकालते हो? at के लिए क्या फॉर्मूला है बोलो फटाक से. अगर v दिया है आपको, ये v है, तो at के लिए क्या फॉर्मूला है? डेरिवेटिव ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dv by dt. तो d by dt ऑफ 2t कितना आता है? 2 आता है. So that is 2 centimeter per second square. That is your second answer. Now find the magnitude of the acceleration at t is equals to 1 second. क्या find out करना है? Magnitude of the acceleration. Now there are two types of acceleration, radial acceleration or tangential acceleration. Then what is the formula for the net acceleration in that case? Net acceleration will be given by root of, बोलो, ar square plus r square plus at square. 8t square. हाँ, तो ar स्क्वायर कितना है? 4. तो उसका 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 20. तो अंडर रूट ऑफ 20 इज व्हाट? 4 5 जा, तो 2 root 5 centimeter per second square. So this will be your third answer. तुम्हाला कळलेलं आहे हे, सोपं होतं. पहिले दोन कॅल्क्युलेशन ते तसले समी येत नाही कधी. ओके, असेच येतात कन्सेप्च्युअल. कळलं तुम्हाला हे? हाँ सर. प्रॉब्लम नंबर 4 देखो. A scooter weighing 150 वीडियो अपलोड kg. करने वाले. सॉरी सर ये वीडियो अपलोड करने वाले ना यूट्यूब. हाँ, अपलोड करने वाले हैं. रिकॉर्डिंग किया है ना मैंने, ये रिकॉर्डिंग चालू है आई थिंक. हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है, टेंशन मत. चालू है सर. ओके. A scooter weighing 150 kg. मास कितना है भाई? 150 kg. ठीक है. Mass of the scooter is 150 kg with its rider moving at 36 km per hour. So उसका स्पीड दिया है 36 km per hour. ठीक है. तो 36 km per hour बोले तो 5 मीटर पर सेकेंड, नहीं 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. So that is 10 meter per second is to take the turn of radius 30 meter. So R दिया है 30 meter. What horizontal force on the scooter is needed to make the turn possible? Okay, तो आपको क्या पूछा है? What horizontal force on the scooter is needed? Now horizontal force is what? Centripetal force, which is necessary for the circular motion of the scooter. So that is what? mv square by r. mb दिया है 150, vb दिया है 10 का स्क्वायर 100. So divided by r कितना है भाई? 30. So your answer is what? 500 न्यूटन. अरे आपको समझ में आया है? सब कुछ दिया है. हॉरिजॉन्टल फोर्स इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल फोर्स इज नथिंग बट द सेंट्रीपेटल फोर्स, बिकॉज इट इज ऑन अ टर्निंग रोड. तो टर्न पॉसिबल यानी सर्कुलर मोशन पॉसिबल होने के लिए जो फोर्स लगेगा दैट विल बी व्हाट? सेंट्रीपेटल फोर्स. ठीक है, क्लियर? क्लियर है? प्रॉब्लम नंबर 5. प्रॉब्लम नंबर 5 में देखो क्या बोला है. क्या बोला है? इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड फॉर द टर्न इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज टू बी सप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड. अभी क्या है? अभी वो बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड फॉर द टर्न इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज टू बी सप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड. What should be the proper angle of banking? That means now the road has been banked. Okay, so if you bank the road, what is going to happen? You know that this is the normal reaction perpendicular to the surface of the contact.
This is one of the component of the normal reaction. You can say vertical component. This is the horizontal component. The weight will be acting in the vertically downward direction, that is mg, and this is what? This is n sin theta. You can say if this theta is the angle of banking. If this is theta, this angle is how much? बोलो फटाक से. थीटा ना, का असतो थीटा? कोणचा angle मला? Anybody? Angle of banking. This theta is, if this angle is theta, then this is 90. So this will be what? 90 minus theta. So if this is 90 minus theta, if I extend this angle will become what? Theta. If this is theta, this will be theta. Okay, so according to the geometry of the figure, you can say, according to the geometry of the figure, this angle is theta. Now the adjacent component will be n cos theta, and the opposite component is what? N sin theta. So you will be having two equations, n cos theta is equals to mg, and n sin theta is equals to what? Mv square by r. So this formula we have derived, right? So v is equals to what? Under root rg tan theta. So v is given ना, if the horizontal root. Previous problem में speed कितना दिया था रे? v 10 और radius कितना था? Previous problem में radius देखो रे कितना था? कितना था? 30. Okay. So we have to take the information from the previous problem. So 30 into 10 tan theta. तो ये कितना हो जाएगा? देखो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा. 100 is equals to 300 tan theta. So that is theta is equals to tan inverse of, बोलो 1/3. tan inverse of 1/3 कितना आता है? देखो, that is your answer. अरे आपको समझ में आया ये? हाँ सर. हाँ सर. Problem number 6. A park has the radius of 10 meter. So radius कितना है? 10 meter का है. If a vehicle goes round it at an average speed of 18 km per hour. V कितना है? 18 km per hour. तो 18 km per hour बोले तो 5 meter per second. ठीक है? What should be the proper angle of banking? थीटा कितना है? चाहे क्या पांडु सम पूछा है? तो क्या बोलने का बोलो? V is equals to under root rg tan theta. So V कितना है? 5 का 25 हो गया, और ये R कितना है? 10 into 10 हो गया tan theta. So theta will be tan inverse of 1/4. बराबर ना? ये 100 हो जाएगा. 25/100 is 1/4. क्लियर? अरे कळले तुम्हाला? हाँ सर. हाँ सर. Problem number 6 is over. Problem number 7. Problem number 7 देखो क्या बोलता है? If the road of the previous problem is horizontal, that means there is no banking. That means theta is what now? 0. What should be the minimum friction coefficient so that the scooter going at 18 km per hour does not skid? Now tell me one thing. If there is no angle of banking, then which force will act as a centripetal force in this case? बोलो फटाक से बोलो. Which force will provide the necessary centripetal force? अरे बोलो, अरे बोलो ना. अरे अपना हो गया ना भाई. अगर बैंकिंग नहीं रहता है रोड, तो कौन सा फोर्स प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? निखिल, निखिल. हाँ सर. हाँ, कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? अगर बैंकिंग नहीं है, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है, बैंकिंग नहीं है, then which force is going to provide the necessary centripetal force? बोलो. फ्रिक्शनल. हाँ तो अरे पता तो है तुमको. सो हियर बोलने को नहीं आता है. हियर फ्रिक्शनल फोर्स
गलत भी हो गए तो कुछ बात नहीं है, आप बोलो तो सही। फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड्स हाँ सर। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, नेसेसरी सीपीएफ सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज mg। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे ये mm कैंसिल हो जाएगा, म्यू आर की हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला है ये? v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर। आर जी। तो आपको क्या निकालना है इधर? व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट? तो वो आपको म्यू निकालना है। v दिया है, राइट, 5 दिया है ना। सो 18 किलोमीटर पर आवर मींस 5 मीटर पर सेकेंड। सो 5 इज इक्वल टू म्यू निकालना है। r कितना दिया है भाई? प्रीवियस प्रॉब्लम, अरे क्या यार प्रीवियस क्या आएगा हर बार? प्रीवियस प्रीवियस कितना है रे इधर? r 10। 10। 10। तो यहाँ पे क्या है? म्यू इंटू 10 इंटू 10 कितना होता है? 100 होता है। सो 25 इज इक्वल टू 100 म्यू। सो दैट इज म्यू का वैल्यू कितना आ गया भाई? 0.25। क्लियर? आपको समझ में आया ये? हाँ अरे सर। तुम्हाला कळलेलं आहे। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट 8 number problem. A circular rod of radius 50 meter has the angle of banking equal to 30 degree. At what speed should a vehicle go on this road? अरे 80 दैट, ये कौन सा प्रॉब्लम है? ये जरा चेक करो रे, 80 क्या है? बीच में 80 किधर से आया? एक्चुअली आई हैव कॉपीड द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द नेट। ये देखो जरा, एचसीवी है क्या किसी के पास उधर? हाँ हाँ सर। तो प्रॉब्लम बोलो ये क्या है, पढ़ के बताओ। A circular rod of 50 meter has the angle of banking equal to 30 degree. हाँ, ये At 80 है क्या उधर? 80 नहीं है सर। क्या लिखा है उसके ऊपर उधर? At what speed should a vehicle go on this road so that the friction is सो not है used? ये, सो दैट है, ओके। हाँ। मैं सोचू ये क्या हो रहा है। ओके, सो आर इज इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ बैंकिंग कितना? 30 डिग्री। एंड व्हाट स्पीड शुड अ व्हीकल गो ऑन दिस रोड सो दैट द फ्रिक्शन इज नॉट यूज? तो कितना स्पीड से भगाओगे सो दैट द फ्रिक्शन इज नॉट यूज? कौन सा स्पीड रहता है जब फ्रिक्शन जीरो होता है? बोलो फटाक से। कैन यू रिमेम्बर द थ्योरी? कैन यू रिमेम्बर द थ्योरी? अरे मैंने बताया था ना। मैं क्या ये यहाँ पे व्हीकल यू स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, राइट? रेस्ट में रहते हैं व्हीकल, तो फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में रहता है? ऊपर वाली। जैसे इसका स्पीड ऊपर। में बढ़ाता हूँ, ये क्या हो जाता है? कम हो जाता, कम हो जाता, कम हो जाता, कम हो जाता। और कौन से स्पीड पे फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाता है? बोलो फटाक से। विच विच स्पीड? अरे अंडर रूट आर जी टैन थीटा, खत्म है बात। हाँ। हाँ। ये क्या है? ये कौन सा स्पीड है? ऑप्टिमम स्पीड है ना। ऑप्टिमम स्पीड बोले तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। वही तो बोले है, देखो ना। A circular road of radius 50 meter has the angle of banking equal to the degree. At what speed should the vehicle go on this road so that the friction is not used? Friction is not used means what? F is zero. ओके, तो ऑप्टिमम स्पीड है हमारा, तो v निकालना है ना हमें। हाँ, v। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट r, कितना है रे? r इज 50 इंटू 10 इंटू tan ऑफ 30 कितना होता है? बोलो। tan 30 निकालना पड़ेगा, एक मिनट। tan 30 is sin 30 by cos 30। sin 30 by cos 30, sin 30 रहता है हाफ, हाफ इंटू रूट 3 बाई 2 होगा, तो रूट 3 बाई 2, तो 1 बाई रूट 3 आएगा, राइट? ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 बोले तो 1 डिवाइडेड बाय 1.732,
V is equals to under root of 500 into 1 divided by 1.732 कितना आता है देखो रे. I think it is 0.6 आता है क्या? I think so. 0.6 आता है क्या? 0.5 के से ज्यादा ही हो गई. 0.577. 577. ओके ओके Yes. ठीक है. अभी इनटू 100 करो ये, तो ये हो जाएगा. एक मिनट. 57.7 इंटू 5 करो. 7 5 35 3 7 5 35 3 38 3 3 किती झाले? 288. 288. 288. ओके 0.5. Yes, sir. 288. ओके. तो ये किसका रूट है देखो जरा. कितना रहता है रे? 15 का 16 17 का है. सो 17 किलोमीटर सॉरी मीटर पर सेकेंड. 17 का ही है ना. 289. हाँ सर, इट इज 17 मीटर पर सेकेंड. 218 हाँ. सही है क्या नहीं? बरोबर आहे. इट इज ऑलमोस्ट 289. ठीक. चलो 9th वाला देखो अभी. बाबा रे बाबा. In the Bohr's model of hydrogen atom, the electron is treated as a particle going in a circle with the center at the proton. तो एटम है, एटम में सेंटर पे प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ऑर्बिट में. ठीक है. ये सर्कुलर मोशन. The proton itself, it is assumed to be fixed in an inertial frame. Okay, so the proton is fixed in an inertial. The centripetal force is provided by the Coulomb force. So यहाँ पे क्या है? Centripetal force is provided by Coulomb force. अभी Coulomb force बोले तो तुमको Coulomb ये अपना Coulomb's law में पता है क्या? Statement of Coulomb's law बोलो. हाँ सर, हाँ बोलो फटाक से बोलो. What is the statement of Coulomb's law? स्टेटमेंट. हाँ स्टेटमेंट. तुमको क्या पूछा मैंने फिर? तुमको क्या स्पेलिंग पूछा क्या इसका? Coulomb's law का स्पेलिंग बताओ. स्टेटमेंट ही पूछूंगा ना. पोटेंशियल डिफरेंस. क्या? पोटेंशियल अबे ओम्स लॉ बता रहे तू. नहीं सर. कूलम और ओम एक ही है क्या? वो ऊपर झगड़ा करेंगे ना, ऐसा करेंगे तो वो बोलेगा साला मेरा क्रेडिट इसको दे रहे, ओम को दे रहे. अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स. The force of attraction or repulsion between any two point charges. Suppose Two-point there are two charges are- point charges Q1 Q2. These two point charges are separated by the distance of r. So there may be the Where? force of attraction or repulsion between the point charges, right? Force of attraction कब होता है रे? हाँ सर, जब अपोजिट चार्जेस हो. ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव एंड ये निगेटिव होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन. So force of attraction, that means force of attraction or repulsion, that is force of interaction, is directly proportional to Q1 Q2 divided by what? R square. Now if I remove this proportionality sign, it will be what? K Q1 Q2 divided by R square. This K का वैल्यू क्या होता है बोलो? K का सर वैल्यू 1 क्या by होता है? 4 pi. सॉरी 1 अपॉन 4 pi epsilon naught. ये एप्सिलॉन 4 नॉट pi. क्या होता है? उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट बोले तो परमिटिविटी Free space or vacuum. हाँ ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टर्म? What is the significance of this term? It is the opposition offered by the medium to the force of interaction. क्या है ये? Opposition offered
बाय द मीडियम। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम सबसे ज्यादा रहता है या सबसे कम रहता है, कौन बोलेगा? बोलो, whether the permittivity of free space or vacuum it is highest or lowest, बीच वाला सवाल ही नहीं है। अरे बोलो ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम विल बी व्हाट? लोएस्ट ना। अरे ये लोएस्ट होएगा तभी तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मैक्सिमम होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर दो चार्जेस फ्री स्पेस में है और वैक्यूम में, अभी ये अपना टॉपिक डेविएट हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। आपका हुआ ना रे करंट इलेक्ट्रिसिटी? और इलेक्ट्रोस्टैटिक 11th में। ओके, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक उसमें है नहीं क्या? नहीं, लेकिन मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बताया था, ये नहीं बताया था? आई थिंक सो, नहीं बताया था, पता नहीं, मैं बताया था ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है चलो जाने दो। तो मैं क्या बोल रहा था, अगर दो चार्जेस वैक्यूम में है, जब वैक्यूम में है और एयर में है, तो उनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम आने के लिए अभी k का वैल्यू क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैक्सिमम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट ना, दिख रहा है क्या? देखो ना यार, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये सबसे कम होगा तभी ये मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स व्हाट? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम इज लोएस्ट। क्या? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम इज लोएस्ट, देयरफॉर द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इसीलिए अगर दोनों चार्जेस एयर और वैक्यूम में है, then the force of interaction that exists between the two charges will be maximum। और वो दो चार्जेस को आप पकड़ोगे और पानी में डाल दोगे तो क्या होगा? नाउ यू हैव चेंज द मीडियम फ्रॉम एयर टू वाटर। वाटर में क्या होता है? अपोजिशन टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दैट मीन्स देयर यू हैव टू यूज द टर्म एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। Now there is a relation between epsilon and epsilon naught. Epsilon is equals to epsilon naught divided by k. ये पता है आपको? हाँ सर। तो नहीं सॉरी, epsilon divided by epsilon naught ना, epsilon divided by epsilon naught is equals to k, ऐसा है वो। के epsilon is equals to epsilon naught k। इसका मतलब क्या कि जब भी आप कोई भी, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। सपोज वाटर है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑलवेज इट इज ग्रेटर देन 1। सबसे लोएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका रहता है? एयर का। कितना रहता है? 1। ओके, तो अगर एयर से हटके कोई मीडियम है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा यानी एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा आएगा। यानी अगर मैं बोलूँ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है? 5 है। ओके, और के का वैल्यू 5 है, तो एप्सिलॉन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25। तो ये अपोजिशन बढ़ गया ना भाई। जब भी आप एयर से वाटर में जाओगे तो एयर में तो अपोजिशन 5 था, अभी कितना है? 25। सो 5 टाइम्स द अपोजिशन, सो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। आपको समझ में आया ये मैं क्या बोला? हैव यू अंडरस्टैंड दिस? अरे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। क्या यार, अरे यार ये क्या, हाँ यहाँ पे करो ना, इक्वेट करो। फिर यहाँ पे क्या करना है? इक्वेट कूलम फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। कूलम फोर्स का फॉर्मूला हमने डिटेल में अभी डिस्कस किया। अभी आपको इक्वेट करना है। इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? इक्वेटिंग इक्वेशन बोलो फटाक से। व्हाट विल बी द इक्वेटिंग इक्वेशन? अरे बोलो ना। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? कूलम फोर्स कैसे लिखते हैं अपन? 1 अपॉन और यू कैन से k q1 q2 divided by what? r square will be equals to what? mv square by r। ये आपको करना पड़ेगा। तो r will be gets cancel। ओके, k का वैल्यू कितना आता है? 9 into 10 raised to 9, ये आपको पता होगा।
इंटू Q1 इज व्हाट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ उसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय R कितना है रे इधर, R दिख रहा है क्या, हाँ रेडियस दिया है ना 5.3 इंटू 10⁻11, तो 5.3 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू मास कितना है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, इंटू V स्क्वायर। तो आपको क्या निकलना है, क्या निकलना है इधर स्पीड, तो ये निकलना है, ये कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये होमवर्क ले लो और मेरे को सेंड कर दो। आपको समझ में आया ये क्या किया मैंने, हाँ सर। इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, ये ध्यान में रखो।